Hello everyone. Today we are going to discuss growth, development, potential GDP, and the ICOR, that is incremental capital output ratio. So let me remind you, this is our lecture number 4 in the very first chapter of Indian economy, in which we have done 3 lectures, and the third lecture was having 2 parts. So if you have not watched that, so please watch it earlier to this lecture so that your better understanding could be built up. Now, let me start with growth and development. Always remember, growth is always calculated in terms of GDP, and development includes various aspects. And what various aspects I have written over here, that is infrastructure, education facilities, health facilities, and air quality, etc. But what is the problem with this GDP? What it is not able to capture? It is not able to capture what? The first one is the distribution. If you are saying that GDP of India is 197 lakh crore, how much per person it is going to? We are not having the data. नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस, दैट मीन्स अगर आप रेस्टोरेंट में पिज्जा खा रहे हैं, वो तो आप जीडीपी में काउंट कर रहे हैं, लेकिन वो क्या, जब आपके घर पे पिज्जा बन रहा है आप उसको काउंट नहीं कर रहे हैं. सो नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस आर नॉट काउंटेड इन दैट. Then externalities does mean when any benefit or harm is there to that an individual or organization does, that is also not paid or penalized for, so that is also not counted. So that is a basic idea of growth and development. Growth is always counted in terms of GDP. Development has various aspects to learn that, to understand that, but in GDP we are not able to capture these 3 factors. So you can use these factors to understand कि जीडीपी क्या कैप्चर नहीं कर रही है. उसके बाद हम आते हैं पोटेंशियल जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ के कॉन्सेप्ट पर. मैं इसको यहाँ पर एक ग्राफ से हम इसको समझेंगे. यहाँ मैंने रियल जीडीपी को लिया है और यहाँ पे मैंने ईयर्स लिए हैं. आप देख रहे हैं ये जो ब्लू कलर की जो लाइन है, आप इसके अंदर एक इंक्रीमेंटल देख रहे हैं, इंक्रीज आप देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर तरीके से इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट तरीके से इंक्रीज हो रहा है. मान लीजिए 9% ग्रोथ है आपकी, 9, दैट इज अ पोटेंशियल जीडीपी. ओके, इट इज ए सस्टेनेबल आउटपुट, सस्टेन कर रहा है जो आउटपुट एक लंबे समय के लिए. So that is very important. So that's why the maximum sustainable output that an economy can produce is known as potential growth. तो इस ग्राफ में जो ये ब्लू कलर की लाइन दिख रही है आपको, that is potential GDP, or you can say this is a trend GDP, that is trending how GDP is moving. The maximum sustainable output which you are getting is counted as a potential GDP. But what is happening? This is not the case. In real GDP, in actual GDP, आप देखते हैं ups and down आते हैं. आप ये देख रहे हैं, ये जो पीक्स आ रही हैं ऊपर नीचे, इसको साइंटिफिक तरीके से समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ. सी, द रियल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी व्हेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर फुली एम्प्लॉयड, that is another definition of potential GDP. That means our 4 factors of production have that potential to grow the GDP in a very trending manner, in a constant manner. So when you are employing all these 4 factors fully or using them, that means when at that time the value of goods and services is known as counted as the potential GDP. Okay, now see, these ups and downs are having some terminology. This is a boom, you can also say that is upturn, that is recession, that is a downturn, and these ups and downs are known as a business cycle. Okay, I think आपको ये बात समझ में आई. Potential GDP does mean a trending GDP, how your GDP is growing. But in actual, if you see, there are some ups and downs in the GDP, and that curves have some terminology, that boom and this recession. What is it? You see, मैंने मान लीजिए यहाँ पे कोई भी आप ईयर ले लीजिए, मान लीजिए मैंने 2024 से 2027 के बीच का लिया, तो आप यहाँ से ये जो कर्व देख रहे हैं, ये आपने क्या कहा? रिसेशन at least 2 consecutive quarters of negative growth measured in terms of real GDP. If your real GDP, you see, this is a graph, this y-axis is representing real GDP, and that is decreasing. So that decrement, that is a negative growth, is measured in terms of real GDP, is called the recession. तो consecutive quarters के लिए अगर आपकी negative growth आती है, तो उस factor को, उस चीज को हम बोलते हैं recession. Okay?
तो रिसेंटली आप 2020-21 में कोविड के केस में जो आप देख पा रहे हैं, दैट इज अ रिसेशन. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन दिस रिसेशन इज वेरी स्टीप डज मीन इट कंटिन्यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम. So this become depression. So depression is when recession is very steep and stay for a long time. Now understand with the example that economic slowdown does mean. What do you mean by economic slowdown? आप देखिए 2015, 16, 17, 18 के जो हमने आंकड़े एक एग्जाम्पल के तौर पे लिए, रियल जीडीपी मान लीजिए 100 रुपए है, 110, 120, 130 है. आप देख रहे हैं रियल जीडीपी की ग्रोथ 10%, यहाँ पे 9%, 8%. क्या इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है? इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन. रियल जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, वो स्लो डाउन हो रही है. So that's the case. You can better understand with that. Now see from graph, what do you understand? The last graph which I drawn, आपने क्या देखा? मैक्सिमम सस्टेनेबल ग्रोथ लाइन है ये. मैक्सिमम तरीके से सस्टेनेबल तरीके से जो ग्रोथ हो सकती है वो आपने दिखाई. लेकिन एक्चुअल में देखा तो अप्स एंड डाउन आए थे, जिसको हमने बूम और रिसेशन में पढ़ा. हमने इसको अप्रोक्सीमेटली माना 8 to 10%. अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ हिंदी में लिखा है आपको समझाने के लिए. जब ये कर्व ऊपर जाती है, बूम आता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? वो चाहती है ये नीचे आए विद द फिस्कल टूल्स. जब ये नीचे आती है, गवर्नमेंट ट्राइज टू पुल इट अप. वैसे बात है, रिसेशन जब आएगा तो गवर्नमेंट चाहेगी इसको वापस ऊपर पुल करें और कांस्टेंट लाइन पे लाना चाहें. अगर आपकी जो पोटेंशियल मैक्सिमम सस्टेनेबल आउटपुट है, अगर आप उससे नीचे जा रहे हैं, दैट मीन्स नेगेटिव ग्रोथ में जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट चाहेगी कि वो नेगेटिव ग्रोथ ना हो. तो हमें एक चीज तो समझ में आती है कि जब ये कर्व नीचे आती है तो आप इसको ऊपर ले जाना चाहेंगे, लेकिन जब ये ऊपर जाती है तो गवर्नमेंट इसको नीचे खींचना क्यों चाहती है? यू सी, बिकॉज गवर्नमेंट नोस ये सस्टेनेबल नहीं है, लंबे समय तक चलने वाली चीज नहीं है. ये नीचे आएगा और जीडीपी को इंपैक्ट करेगा, और जब जब ये नीचे आएगा ये जीडीपी को इंपैक्ट करेगा, और फिर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन पैदा होंगी. इससे अच्छा पहले ही इसको सस्टेनेबल ग्रोथ लाइन के साथ रखा जाए. तो दैट इज द एक्चुअल सिचुएशन गवर्नमेंट इज डूइंग. when you are dealing with that real GDP curve, when it is fluctuating in this manner, when it is going up, when there is a boom in the economy, government tries to pull it down, because because whenever this will be coming down, it will be creating some problem, social problems, poverty, unemployment, and that will be problematic for the economy. तो क्यों ना हम इसको पहले ही ग्रोथ लाइन के पैरेलल रखना चाहें. तो दैट इज द केस. अब इसको कैसे नीचे लाएंगे, धीरे धीरे आप सभी टूल्स को हम समझेंगे. ये हमेशा ध्यान रखिए, मेरे लेक्चर्स में यू विल बी गेटिंग, आई नो वेयर टू डिस्कस व्हाट. इट डजंट मीन दैट डेलिबरेटली, अगर मैं आपको खुद बोल रहा हूं कि मैं कुछ चीजों को लेक्चर्स में स्किप करता हूं, उसका रीजन क्या है? आप कोशिश कीजिएगा ये ऑब्जर्व करने की कि जो लेक्चर्स हमने पहले किए हैं उनकी कनेक्टिविटी इस लेक्चर में आ रही है कि नहीं आ रही है. मैं उस टर्मिनोलॉजी का बिल्कुल भी यूज नहीं करूंगा, या उसको मैं एलेबोरेट करूंगा ही नहीं जो इस लेवल पर जरूरी नहीं है. आई नो दीज फिजिकल टूल्स आई विल बी अंडरस्टैंडिंग इन द बैंकिंग, तो दैट्स अ डिफरेंट केस. आप इसको छोड़िए, बस इतना समझिए कॉन्सेप्ट कि अगर ये ऊपर जाता है तो गवर्नमेंट इसको नीचे लाना क्यों चाहती है. नीचे वाला ऊपर लाना है वो समझ में आता है, लेकिन ऊपर वाला नीचे क्यों लाना है ये समझ में नहीं आता. गेटिंग माय पॉइंट? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक अच्छा पैकेज लें और हवा में उड़ने लग जाएं. राइट? आप अच्छा पैकेज कमा रहे हैं और आप हवा में उड़ने लग जाएं, और नेचुरली कोई अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आपकी वो सैलरी जो है वो एकदम से नीचे आ जाए, तो ऑब्वियसली जो आपका जो लाइफस्टाइल है वो इम्पैक्ट होगा. और इसी वजह से हमने यहाँ पे बोला आवर जीडीपी विल बी इम्पैक्टेड एंड सम सोशल प्रॉब्लम्स विल बी एमर्जिंग आउट ऑफ दैट. तो अच्छा है उसको हम पहले से ही मेंटेन करके रखें. नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस lecture, that is a productivity. Now what do you understand by productivity? Very basic chapters these are. I'm enjoying these lectures while sharing with all of you because these are very beautiful examples we have taken here. Okay, so 1 acre land, that is 5 laborers. मान लीजिए आप 1 एकड़ लैंड के ऊपर 5 लेबरर्स को काम करवा रहे हैं, और यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया गया है कि मान लीजिए 1 साल के अंदर 1 टन गेहूं आप पैदा करते हैं. तो आप समझिए प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर कैसे आएगी? आउटपुट अपॉन इनपुट, दैट इज एफिशिएंसी. आउटपुट अपॉन द
इनपुट, आउटपुट कितना है, 1 टन व्हीट प्रोड्यूस किया। इनपुट हमने कितनी दी, इनपुट इन टर्म्स ऑफ लेबरर्स, यानी कि 5 लेबर से हमने 1 टन व्हीट को प्रोड्यूस किया 1 साल के अंदर। तो अगर हम एक लेबर की प्रोडक्टिविटी निकालना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वी विल बी डिवाइडिंग 1 टन बाय 5, so that is 0.2 ton per laborer. So that is a productivity. Now what is the productivity of the land? Then see, productivity of labor does mean you are using labor as an input. Productivity of the land does mean you are using land as an input. Okay, so what you are producing, you are producing wheat, how much, 1 ton. But when you are producing 1 ton, what you are using as an input, it is land or labor. If you are taking labor, it is a productivity of the labor. If you are taking land as an input, it is a productivity of the land. So how much land you used, 1 acre, that means 1 ton per acre, that is the productivity of the land. So I think that is a basic definition of the productivity. मैं फिर बोल रहा हूँ, छोटा आदमी बड़ा काम करवाता है, जो काम एक ऑफिसर नहीं कर सकता वो एक क्लर्क कर सकता है, आप ये ध्यान रखिए, ये बिल्कुल वैसा ही है। ओके, ये बेसिक चीजें आपको ऊपर ले जाएंगी। ओके, जब आप क्वेश्चन की रीडिंग लेंगे आफ्टर 2 or 3 lectures, I have promised that I'll be giving you some question bank and I'll let you feel that what we have done in these lectures. In the previous years, what questions had been asked? Okay, now marginal productivity of the labor or any input, मैंने यहां किया है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होता है। अब जब मार्जिनल की बात आती है, आप देखते हैं चेंज इन आउटपुट। अब ऑब्वियसली बात है, चेंज इन आउटपुट कैसे आएगा, आपको इनपुट में चेंज करना पड़ेगा। सो व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग द चेंज इन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन आउटपुट, change in input, sorry, that means that is a marginal productivity. Overall it is output upon input, but what output, that is a change in output by change in input. Getting my point? See, this is 0.1, मान लीजिए हमने 0.1 आउटपुट चेंज किया, एक लेबर बढ़ा दिया, ये बढ़ा हुआ है, हमने कितनी लेबर बढ़ाई, दैट इज, और हमने देखा कि 0.1 का चेंज आ गया, सो 0.1 टन पर लेबर, दैट इज अ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ओके, कोई आपसे ये फॉर्मूले पूछने वाला नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन फिर हम ये क्यों कर रहे हैं, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जब आपके सामने टर्म्स आती हैं किसी क्वेश्चन में, तो आधा कॉन्फिडेंस तभी बढ़ जाता है जब आपको दिखता है कि ये टर्म मैं जानता हूं। ओके, हम अंधाधुंध तुक्के नहीं लगा सकते हैं। हमेशा बोला जाता है यूपीएससी के अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपको आता है वो आप करते हैं, लेकिन जो एक सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो शुरू होता है एलिमिनेशन मेथड पे। बट दिस इज ए मैसेज टू ऑल ऑफ यू, यू जस्ट थिंक एलिमिनेशन मेथड कब कामयाब है, एलिमिनेशन मेथड तब कामयाब है जब आपने बहुत सारा कंटेंट पढ़ा हो। कंटेंट पढ़ा मतलब जो टर्मिनोलॉजीज आपकी आंखों के सामने से निकली हो, तब आप एलिमिनेट कर सकते हैं चीजों को। और जिस चीज को आपने देखा ही नहीं, आप उसको एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, आप सोचिए। तो ट्राई टू गो थ्रू मोर एंड मोर कंटेंट, more and more terminologies regarding that particular subject. Okay, so strategy does matter, again I am repeating myself. Now come to the another point, this is example, मान लीजिए मेरी academy है and this is a coaching institute. Okay, Jagmohan is owning the coaching institute in which there are some chairs. Okay, building, chair, capital, ये मैंने क्या लिखा है आपको बता दूं, बिल्डिंग एंड चेयर आर द कैपिटल्स, बिकॉज बाय यूजिंग दीज कैपिटल्स आई एम अर्निंग समथिंग, आई एम प्रोड्यूसिंग समथिंग, आई एम गिविंग समथिंग। ओके, सो दैट इज अ कैपिटल। सी, मैंने मान लिया कि क्लास की कैपेसिटी है 50 और 20 चेयर जो है वो वैकेंट है, ऐसा कुछ यहाँ लिया गया है एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल विल बी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल, दैट मीन्स कैपिटल की प्रोडक्टिविटी वो भी मार्जिनल। क्या आपको आउटपुट में चेंज देखना पड़ेगा, कब, जब आप इनपुट में चेंज लाएंगे। आप देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ऑप्शन 0 सम पॉजिटिव, 0 1 नेगेटिव, है ना, ऐसा कुछ एग्जांपल लिखे। बट एक बार इसको हम भूल जाते हैं क्वेश्चन को। आप देखिए, टू आंसर सच क्वेश्चन एट द कैपिटल एंड चेक द चेंज इन आउटपुट। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब पता है तो आप सोचेंगे यार पहले ना मैं इनपुट बढ़ा के देखता हूँ, फिर देखता हूँ आउटपुट में कितना चेंज आएगा।
तो जैसे ही आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछेंगे, यू विल बी एडिंग सम इनपुट and you will be getting some change in the output. Okay, so this is practically it cannot be negative. Okay, obviously when input will be high, so output will be changing, so it cannot be negative. Now understand, so there is no change in the output. You see, check the change in the output, therefore that is there is no change in the output. आप अगर ऐसा होता है कि आप इनपुट बढ़ाएं और कोई आउटपुट में चेंज ना आए, तो ऑब्वियसली बात है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी विल बी काउंटेड एज अ जीरो एंड मोस्ट ऑफ द केस इट विल बी पॉजिटिव. Okay, it cannot be negative. When the equal change in input and equal change in output, you will be getting it 1. So accordingly you can give the answer. Now come to capital output ratio, very important concept, focus on it. Productivity of the capital input, हमने क्या बात की, आउटपुट अपॉन इनपुट, दैट मीन्स प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, दैट मीन्स कैपिटल इज अ इनपुट. सो मैंने यहाँ पे इनपुट लिखा, मैं हर चीज वो समझा रहा हूँ जो मैंने यहाँ नोट्स में लिखी है, ठीक है. और मैं आपको फिर मैसेज कर रहा हूँ, अगर आप किसी के नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो इट इज वेरी मच नेसेसरी कि आप उस इंसान से उन नोट्स के बारे में जरूर सुने और पूछें कि उसने वो किस संदर्भ में लिखा है. अदरवाइज आप नोट्स पढ़ के किसी को समझ सकते हैं लेकिन एक वो इफेक्टिवनेस नहीं आती. Now productivity of the capital, this is average. This is average. How it is average? See, 31 दिसंबर 2021 को मान लीजिए आपने कैपिटल जो इन्वेस्ट की वो थी के, यानी कि जो आपने इनपुट दिया वो था के, और आउटपुट आया आपका वाई. तो मैंने कहा प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आप लेंगे कि आउटपुट कितना आया, दैट वाज 2 एंड इनपुट वाज 1. एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है 2 और 1. तो आप इसको बोलेंगे कैसे, यानी कि 1 यूनिट कैपिटल 2 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, 1 यूनिट इनपुट 2 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है. एक मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है, बहुत सारे बच्चों को फ्रैक्शन का मीनिंग नहीं पता होता है. डू रिमेंबर दैट. फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसके अंदर जो न्यूमरेटर होता है वो एक ओरिजिनल पार्ट होता है, और ये जो 2 होता है ये एक इफेक्ट होता है. जस्ट दैट मीन्स मान लीजिए मैंने कहा कि 25% इंक्रीज हुआ किसी चीज में, तो आप इसको लिखेंगे 1/4. इसका मतलब आप इसको पढ़ेंगे कि 4 था और वो 1 बढ़ गया मतलब वो कितना बन गया, 5 बन गया. तो फ्रैक्शन का मीनिंग, बेसिक चीजों का मीनिंग आपको आना चाहिए. अगर टाइम बचा तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी, each and every subject will be on this channel. It is my promise to all of you, and that will be very effective, very relevant content I'll be providing to all of you. So keep supporting. Only then I'll be having that much interest to get you that content. So without wasting time, come to the our part, that is productivity of the capital. This is average. I'm giving you the meaning of the fraction. I have taken an example that when you are producing 2 unit by using 1 unit of the input, how it can be read, this one. Now what we want to increase GDP, what we want to increase GDP capital investment. अब देखिए हम क्या बढ़ाना चाहते हैं, टारगेट क्या है हमारा, आउटपुट मतलब जीडीपी. बट दिस कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स आर इंक्रीज. ऑब्वियस सी बात है, इनपुट आप बढ़ाएंगे तभी आउटपुट बढ़ सकती है. अब देखिए, इसलिए हर इकोनॉमिक पॉलिसी में पॉलिसी मेकर क्या करते हैं, मैंने कहा आपसे क्वेश्चन पूछा, अगर आप अपनी आउटपुट बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप ऑब्वियसली बात है आप अपनी इनपुट बढ़ाएंगे. देखना चाहेगा कि एक यूनिट आउटपुट के लिए हमें कितना कैपिटल इनपुट चाहिए. मतलब जब इकोनॉमी के अंदर जो पॉलिसी मेकर्स पॉलिसी फ्रेम करते हैं तो वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि एक यूनिट आउटपुट के लिए मुझे कितना कैपिटल इनपुट चाहिए. वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग दैट वन. यू सी, हमने क्या कहा, y बाय के, आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट. और मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया है दैट इज कैपिटल आउटपुट रेशियो. y बाय के, y को मैंने माना था आउटपुट, k को मैंने माना था कैपिटल. ये बात ठीक है कि इतनी यूनिट इनपुट इतना यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन हमें क्या जानना है, हमें तो ये जानना है, हमें ये जानना है कि एक यूनिट आउटपुट, यानी कि आउटपुट को रिस्पेक्ट में लेके हम ये देखना चाहते हैं कि मुझे कैपिटल इनपुट कितना चाहिए.
तो जो ये समझे कि कितना चाहिए वो ऊपर आता है, तो हम वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस वन, दैट इज k by y. What is k? Input. What is y? This is output. I think you are getting the idea. Now see, this is 3 by 1. This is known as a capital output ratio. जितनी कम उतनी अच्छी. ये देखिए y by k वैल्यू जितनी बड़ी उतनी अच्छी. दैट मीन्स अगर हम कम इनपुट में जितना डिनोमिनेटर छोटा उतनी वैल्यू बड़ी. तो इसका मतलब जितनी कम इनपुट में हम ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करा पाएंगे उतना बेटर है. तो ये वैल्यू तो जितनी बड़ी होगी उतनी अच्छी है. लेकिन ये इसके अंदर आप देखो, जो ये आपका y है, आउटपुट है, ये जितना ज्यादा होगा उतना ही तो बेटर है, उतना बेटर है. तो दिस इज नोन एज ए कैपिटल आउटपुट रेशियो. जितनी कम उतनी अच्छी. आई थिंक यू आर गेटिंग माई आइडिया. सो दिस इज समथिंग एवरेज, और मैंने एग्जाम्पल लेके आपको यहाँ पे समझाया है. आई अगेन रिपीट, वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि एक इनपुट कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, बल्कि हम ये जानना चाहते हैं कि एक आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए कितना इनपुट मुझे चाहिए. इसलिए वो रेशियो इन्वर्ट हो जाती है एंड नोन एज ए कैपिटल आउटपुट रेशियो. ओके फाइन. नाउ गवर्नमेंट कम्स, इट विल बी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि अगर आउटपुट एक यूनिट से बढ़ानी है, अब गवर्नमेंट सोच रही है कि मुझे एक यूनिट आउटपुट बढ़ानी है, तो हमें कितनी इन्वेस्टमेंट या कैपिटल चाहिए. हमें कितनी इन्वेस्टमेंट या कैपिटल, अगेन वही बात है, मुझे आउटपुट बढ़ानी है इतनी, तो आप क्या बात करेंगे. जैसे वहां पे मार्जिनल की बात की थी, अभी आप बात करें इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो. दैट मींस यू वांट टू इंक्रीज दैट इंक्रीमेंटल कैपिटल, दैट कैपिटल आउटपुट रेशियो. बट दैट्स नॉट द केस. यू सी, आप एक आउटपुट के लिए कितना एक आउटपुट के लिए कितना इन्वेस्टमेंट आप चाहते हैं, ये आपको निकालना है. आपने देखा, दैट कैन बी रिटन एज डेल्टा के अपॉन डेल्टा वाई. यू विल बी चेंजिंग इन द, यू वांट द चेंज इन दिस आउटपुट. हाउ मच? 1 यूनिट. तो कितना लेना पड़ेगा आपको ये. तो यही चीज हम यहाँ देख रहे हैं. आप देखिए, अब यहाँ मैंने इस फैक्टर को, दिस इज नोन एज आईकोर, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, दैट इज डिवाइडेड बाय वाई, दैट इज डेल्टा के अपॉन वाई, डेल्टा वाई अपॉन वाई. सोचिए ये क्या है, डेल्टा के अपॉन वाई. डेल्टा के क्या था आपका, इंक्रीमेंट. अब दैट इज चेंज इन द कैपिटल स्टॉक. आप कैपिटल बढ़ा रहे हैं यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू द आउटपुट. ये क्या है, दैट इज इन्वेस्टमेंट परसेंटेज इन जीडीपी. ये जो परसेंटेज है ये क्या है, इन्वेस्टमेंट परसेंटेज इन जीडीपी. और ये जो डेल्टा वाई अपॉन वाई है ये क्या है, परसेंटेज चेंज इन जीडीपी. दैट मीन्स आपने ग्रोथ की है, आप आउटपुट पहले वाई थी, आपने उसमें चेंज किया, आप चेंज बाय ओरिजिनल देख रहे हैं, इसका मतलब ये परसेंटेज चेंज है. तो ऊपर वाला फैक्टर क्या दिखा रहा है आपको, कि हमारी जीडीपी में इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज क्या है, और ये दिखा रहा है परसेंटेज चेंज इन जीडीपी, दैट इज जीडीपी ग्रोथ. तो आई कोर को आप डिफाइन कैसे करेंगे, परसेंटेज इन्वेस्टमेंट इन जीडीपी एंड द परसेंटेज चेंज इन जीडीपी. आई रिपीट, आप y बाई के में इंटरेस्टेड नहीं है, आप k बाय y में इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज आप देखना चाहते हैं कि एक आउटपुट यूनिट, एक यूनिट आउटपुट को अगर आपको बढ़ाना है तो आपको कितनी इनपुट चाहिए. एंड दैट्स हाउ हमने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, दैट इज डेल्टा के अपॉन डेल्टा वाई. टू लेट दिस अंडरस्टैंड, we divided this factor by y and by y. What does this mean? This is the capital, change in the capital with respect to the output. That means how much you are investing, how much percentage you are investing in the GDP. That is what. And delta y upon y is a change in output by original output. What does it mean? This is a percentage change in GDP growth. Okay, so I-core is defined as percentage investment in GDP and percentage change in GDP. आप यहाँ देखिए, मैंने दिखाया आपको, डेल्टा के इज व्हाट, डेल्टा के इज ए इन्वेस्टमेंट. के को आपने डेल्टा के बना दिया. कैपिटल इनपुट वाज प्रेजेंट, इनपुट वाज अवेलेबल टू यू एज ए यूनिट के, बट नाउ यू आर इन्वेस्टिंग नाउ के प्लस डेल्टा के. दैट मीन्स आपने डेल्टा के इनपुट में ऐड किया, बट इट इज द इन्वेस्टमेंट. नाउ सी व्हाट इज आई कोर. आई कोर, इट इज इनवर्स ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल. प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल हमारी क्या आई थी, आपने देखा, यहाँ देखिए, हमने प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल को क्या डिस्कस किया था, y बाई के. ये किया प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल. इसका उल्टा कीजिए, क्या आई कोर उल्टा नहीं है, ये देखिए,
how efficiently the capital is being used to create output. That means iCore is saying आपका इनपुट कितना इफेक्टिवली यूज हो पा रहा है आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए. दैट व्हाट इट इज. हाउ एफिशिएंटली द कैपिटल इज बीइंग यूज्ड टू क्रिएट आउटपुट. यू सी, आपने यहां लिखा 4, iCore is 4, 8% is a growth in GDP. इसका मतलब आप क्या पूछ रहे हैं? इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट यहां से कितना काउंट किया आपने? 32%. दैट मीन्स आपको 32% इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके हमारी 8% ग्रोथ होगी. तो iCore क्या बता पा रहा है आपको कि कैपिटल कितना एफिशिएंटली यूज हो रहा है. अगेन यू सी, 3 चाहिए तो 24%. तो आप क्या देख रहे हैं? परसेंटेज चेंज इन जीडीपी, दैट इज जीडीपी ग्रोथ इज गिवन बाय इन्वेस्टमेंट परसेंटेज इन जीडीपी बाय iCore. ये मैंने थोड़ा सा उल्टा लिखा है, इस टर्म को मैं इधर ले गया, इसको मैं इधर ले आया. तो इसको इंक्रीज करने के लिए हमें ये क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा. आप क्या चाहते हैं अल्टीमेटली? मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, आप क्या चाहते हैं? आप आउटपुट ज्यादा चाहते हैं. दैट मीन्स आप ग्रोथ चाहते हैं जीडीपी में. तो क्या आपको ये iCore जो है, रेशो जो है, ये इंक्रीज नहीं करनी पड़े, रिड्यूस नहीं करनी पड़ेगी? यस. हाउ? सी, आप कैसे रिड्यूस करेंगे इसको? अब देखिए ध्यान से. वी हैव सम सेम मशीन इन चाइना एंड इंडिया. हमने एग्जांपल लिया, चाइना और इंडिया के अंदर सेम मशीन है और ये मशीन 1 साल के लिए काम करती है. चाइना में जो काम कर रही है वो मशीन आउटपुट देती है ए, और इंडिया में आउटपुट मिलती है हमें A/2. वाई? बिकॉज हम मान लेते हैं कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी के कारण, कोई प्रोटेस्ट के कारण कुछ जो वर्किंग है वो नहीं हो पाई और हमारी मशीन 6 महीने काम कर पाई, तो इसलिए हमारी आउटपुट ये रहे. तो हमने क्या देखा? आउटपुट के कम होने का रीजन कैपिटल नहीं है. क्या है? सम पॉलिटिकल रीजन कैन बी देयर. दैट इज मशीन नहीं है, बल्कि वो एनवायरमेंट है जहां प्रोडक्शन हो रही है. ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको ढंग से समझिए. आप सेम मशीन है, एक मशीन 1 साल चलती है, एक 6 महीने चलती है. वो 6 महीने चली इसलिए A/2 आया. वो 6 महीने इसलिए चली क्योंकि एनवायरमेंट अलग था, ये नहीं कि वो मशीन खराब हो गई थी. तो लो प्रोडक्टिविटी एंड हाई iCore. क्या इसकी प्रोडक्टिविटी कम है? इसका मतलब इसका iCore ज्यादा है. इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो इसका iCore कम है, और जितना iCore कम है उतनी प्रोडक्टिविटी, उतनी ग्रोथ ज्यादा है. आप देख रहे हैं. तो आपको चीजों को कैसे समझना है? आई थिंक यू आर गेटिंग द आइडिया. नाउ सी, दैट इज प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, iCore घटेगा. आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, iCore घटेगा और जीडीपी में ग्रोथ बढ़ेगी. यही चीज मैं समझाना चाह रहा था. हमें ये सीखना था कि जीडीपी में ग्रोथ कैसे बढ़ाते हैं, और उसका ये बेस्ट एग्जांपल है. बेस्ट एग्जांपल में हमने क्या कहा कि अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे तो आपकी iCore घटेगी, और iCore घटेगी तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला, this percentage change in GDP, obviously this growth will be there, positive growth will be there, and this is how. Now understand the concept. You see, despite having high saving economy, this is a question here, capital formation may not result in significant increase in output due to, मैंने कहा despite having high saving economy, that means economy is saving, लेकिन capital formation may not result इन द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट. सेविंग के बाद भी आप अपनी आउटपुट के अंदर एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं देख पा रहे हैं. ऐसा कब हो सकता है? देखिए, वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हो सकता है ऐसा. भाई आपकी आउटपुट उस हिसाब से ना आए जो आप चाहते हैं. ऑब्वियसली बात, हमने अभी बात की वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी. इलिटरेसी, यस ऑब्वियसली इट कैन बी ए रीजन. हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, यू अंडरस्टैंड. लेकिन अभी हमने देखा हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो. अब इसके अंदर मैं इस क्वेश्चन से कुछ नहीं समझाना चाहता हूं, मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूं व्हेन दिस ऑप्शन इज गिवन टू यू, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, कैपिटल आउटपुट दैट इज K/Y. तो मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये क्या iCore से रिलेटेड नहीं है? यस. तो iCore जितना हाई होगा उतनी आपकी ग्रोथ कम होगी. तो जितना ज्यादा होगा उतनी ग्रोथ कम है, और ये यही पूछ रहा है कि वो इंक्रीज नहीं हुआ है, तो उसका कारण क्या हो सकता है? हाई iCore होगा, उतनी ग्रोथ नहीं हुई होगी. Okay, so these all are the factors which can be responsible. So everything is involved in it. अगर एक ही ऑप्शन पूछा जाए, या तो देखिए हम बात करेंगे कि ए, बी और डी, ए, बी, डी भी आपके आंसर हो सकते हैं, लेकिन क्या आपके अगर एक ही आंसर पूछा जाए तो इसके अंदर सब कुछ आएगा. हाई कैपिटल आउटपुट रेशो हुई क्यों? क्योंकि वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हो सकती है, इलिटरेसी हो सकती है, बट हाई पॉपुलेशन डेंसिटी
has no matter with the productivity. Okay, so this is today's class now, and now I am winding up. मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके सामने जो रेगुलर कंटेंट आ रहा है, जो हमारे एफर्ट्स लग रहे हैं, प्लीज़ आप शेयर एंड सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को, और जिस तरीके का भी सजेशन है वो कमेंट में ज़रूर डालें. वी विल बी pondering over that. And one more thing is, this content is based on very basic things, so please do not underestimate it. I have promised you कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन बैंक दूंगा जिसके अंदर I'll let you feel कि how important it is. So it is a small message to all of you. So keep revising and stay tuned. Thank you so much. Meet you in the next lecture.